وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے وہ حسرتناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کے جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقب نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا بااختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے یہ میرے اشارے پر رکے گا بھی یا نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 3 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پھرتی سے اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا۔ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگی۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی جس کے پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منچا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی حویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستوا ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پر موجود نفاست سے ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور پرروب تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ کبیر دادا بولا، آپ نے حال پوچھ لیا؟ اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی۔
मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी उसके यूं खड़े होने को अहमियत नहीं दी थी। जस्टिस जहीर अमजद ने हकलाते हुए पूछा, कबीर दादा, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? कबीर बोला, सुना है आप हमारे एक खिदमतगार को फांसी की सजा सुनाने वाले हैं और इसी वजह से उसके केस का फैसला मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। जस्टिस जहीर बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस उसकी बेगुनाही के लिए किसी मुनासिब सबूत का मुंतजिर हूँ, इस वजह से फैसले में थोड़ी ताखीर हो गई है। कबीर दादा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसते हुए अपना पांव उसकी कार की बोनट पर रखा, फिर बोला, वो कबीर दादा का आदमी है, उसकी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जस्टिस जहीर बोला, बिल्कुल जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। खौफ से जस्टिस का रंग पीला पड़ गया था। कबीर दादा बोला, वैसे इतने ही समझदार हो या मुझे देखकर अक्ल आ गई? जस्टिस बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कबीर दादा। वो खुश्क होते होंठों को तर करने लगा। कबीर दादा ने हाथ में सुलगती सिगरेट की राख अपने बोनट पर रखे बूट पर छाड़ी और फिर अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ जस्टिस जहीर अमजद की तरफ मुतवज्जे हुआ। उफ़ो यार, देखो फिर बूट की पॉलिश खराब कर बैठा हूँ, आपके पास रुमाल तो होगा? जस्टिस बोला, जी। चेहरे पर बेबसी के तासुरात सजाए जस्टिस जहीर अमजद ने जेब से रुमाल निकाला और करीब होकर कबीर दादा के बूट पर पड़ी सिगरेट की राख साफ कर दी। कबीर दादा के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। बोला, परसों शाम को मैं अपने आदमी की रिहाई पर घर पर पार्टी दे रहा हूँ, जरूर तशरीफ लाइएगा। जस्टिस जहीर ने इस बात में सर हिलाया, बोला, जी जरूर, और कबीर दादा वापस अपनी कार की जानिब मुड़ गया। उसकी सरसरी निगाह दोबारा तनावुश पर पड़ी। कार के दरवाजे के पास रुकते हुए वो खिफ़्फ़त और जिल्लत के मिले जुले एहसास में मुब्तला जस्टिस से पूछने लगा, ये लड़की तुम्हारी बेटी तो नहीं है? उसने तनावुश की तरफ इशारा किया और फिर जस्टिस का जवाब सुने बगैर कार में बैठ गया। पहले वाले आदमी ही ने कार का दरवाजा बंद किया और भागकर जीप में बैठ गया। मर्सिडीज एक झटके से आगे बढ़ गई। तनावुश की निगाहें मर्सिडीज पर ही गड़ी रह गई थी। उसकी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर भी इतना अजीब था कि उसे फौरन याद हो गया था, K302। जब तक वो कीमती कार नजर आती रही, तनावुश उसी तरफ मुतवज्जे रही। उसके नजरों से ओझल होते ही वो जस्टिस की तरफ मुतवज्जे हुई, जो मुज़महिल अंदाज में कार में बैठ रहा था। उसके मुहाफिजों ने इस दौरान जीप से नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी। तनावुश की निगाह काफी देर बाद वर्दी में मलबूस उन सूरमाओं की तरफ उठी और उनके खौफ से पीले पड़ते चेहरे देखकर तनावुश के दिल में कबीर दादा का मजीद रोब बैठ गया। उसके दिमाग में उम्मीद अफजा सोच उभरी, क्या दिलावर शेख भी उससे इसी तरह खौफजदा होगा? यकीनन वो सड़क छाप उसे देखकर अपनी शलवार गीली होने से नहीं बचा सकता। दिलावर शेख की नफरत से भरे दिल में खुशकुन ख्याल उजागर हुआ। फिर उसने सोचा, मगर उसे क्या जरूरत कि मेरी जैसी आम लड़की के लिए अपना वक्त बर्बाद करता फिरे। हम जैसे कीड़े मकोड़े इतनी अहमियत के हामिल तो नहीं होते कि उनकी खातिर भी किसी को जस्टिस जहीर अमजद की तरह सरे राह रोक कर 2-3 मिनट की पुचकिच ही कर ली जाए। सर झटक कर वो चौड़ी रविश को उबूर करके आगे बढ़ गई। जस्टिस की कार वहां से गायब हो गई थी। अब उसका दिमाग दाएं बाएं के मनाजिर की बजाय कबीर दादा की पुर्रोब शख्सियत को सोच रहा था। उसकी शक्ल सूरत, चश्मा लगाने का अंदाज, दराज कामत, कसरती जिस्म, कीमती लिबास, बात करने का पुरएतमाद और जचातुला अंदाज। उसे मालूम नहीं हो रहा था कि वो क्यों उसे इतना अच्छा और अपना अपना लगा। उसकी सोचों में कार के तेज हॉर्न ने खलल डाला था। उसने चौंकते हुए सर उठाया। बेख्याली में वो फुटपाथ से उतर कर सड़क पर आ गई थी। वो जल्दी से फुटपाथ पर चढ़ गई। कबीर दादा की शख्सियत एक बार फिर उसकी सोचों पर हमलावर हुई, मगर जोर से सर झटकते हुए उसने ट्रैफिक की रवानी पर नजरें गाड़ लीं। कबीर दादा की दिलिस्माती शख्सियत की हैसियत ख्वाबों और सपनों के तसव्वुराती शहजादे की सी थी। एक ऐसा शहजादा जो फातिह फौज की क़यादत करता हुआ वतन वापस लौटे और पूरा शहर उसे देखने और उससे हाथ मिलाने के लिए टूटा पड़ रहा हो, और वो एक आम राहगीर की तरह दूर खड़ी उसे हसरत भरी निगाहों से तकने के अलावा कुछ न कर सकती हो। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी का वक्त हो गया था। उसे रिक्शों, बसों और वैगनों में मुख्तलिफ उम्र के बच्चे बच्चियां भरे हुए घर की जानिब रवाना दिखाई दे रहे थे। मोटरसाइकिलों और कारों के अंदर भी स्कूल कॉलेज के तलबा ही भरे हुए नजर आ रहे थे। उसने घर वापसी का सोचा। उसी लम्हे उसे दोबारा जोर की भूख का एहसास हुआ। दाएं बाएं नजरें दौड़ाने पर उसे कुछ फासले पर एक पार्क नजर आया। सुस्ती से पांव घसीटती वो पार्क की जानिब बढ़ गई। सुबह से मुसलसल चलने की वजह से उसे सख्त किस्म की थकन महसूस हो रही थी, मगर उसकी जेब में इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि टैक्सी या रिक्शा करवाकर घर का रुख कर सकती। पार्क की संगी बेंच पर बैठकर वो कंधे से लटका स्कूल बैग गोद में रख कर खोलने लगी। वो प्लास्टिक के एक डिब्बे ही में दोपहर का खाना डाल कर लाया करती।
वही उसका लंच बॉक्स था। डिब्बे का ऊपरी ढक्कन हटाकर उसने ठंडे पराठों से एक निवाला तोड़ा और रग़बत से चबाने लगी। शदीद किस्म की भूख में वो पराठे किसी मुरग़्ग़न ग़िज़ा से कम जायका नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों पराठे चट कर गई। लंच बॉक्स वापस बैग में डालकर वो पार्क के कोने में लगे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की तरफ बढ़ गई, जिस पर जंजीर से बंधा एक सिल्वर का ग्लास मौजूद था। 2 गिलास पानी मेदे में उंडेल कर वो दोबारा बेंच के पास आकर सस्ताने बैठ गई। खाना खाने के बाद उसे एकदम थकन महसूस हुई। उसका दिल कर रहा था कि वही लंबी तान कर सो जाए, मगर फिर घर वापसी के ख्याल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। पाँव घसीटती हुई वो पार्क से बाहर आई और वापसी के रास्ते पर गामजन हो गई। उस वक्त वो पुरशिकोह और दीदाजेब कोठियों के सामने से गुजर रही थी जब उसकी नजर सफेद गुलाब के पौधे पर पड़ी जो फूलों से अटा पड़ा था। वो पौधा कोठी और सड़क को मिलाने वाली सीमेंट की पुख्ता रविश के साथ बनी क्यारी में लगा हुआ था। सफेद गुलाब हमेशा से उसकी कमजोरी रहे थे। वो एक फूल के करीब नाक ले जाकर उसकी भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारने लगी। खुशबू सूंघते हुए अचानक उसकी समातों में ब्रेकों की चरचराहट गूंजी। उसने नजरें उठाई। एक गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क से सीमेंट की पुख्ता रविश की तरफ मुड़ रही थी और फिर गाड़ी को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो कबीर दादा वाली मर्सिडीज ही थी। उसके अकब में 2 जीपें मौजूद थीं। मजीद तस्दीक के लिए उसकी आंखों ने गेट के सामने एक लम्हे के लिए रुकने वाली मर्सिडीज की नंबर प्लेट पढ़ी K302। ये पढ़ते ही वो बुत बनी कार और जीपों को गेट के अंदर दाखिल होता देखती रही। सफेद गुलाब की खुशबू सूंघना उसे भूल गया था। गाड़ियों के अंदर जाते ही गेट बंद हो गया था, मगर वो उसी तरह टिकटिकी बांधे गेट को देखती रही और फिर उसके अंदर एक खास जज्बे ने सर उभारा और वो गेट की तरफ चल पड़ी। वो गेट से 10-12 कदम दूर ही थी कि सलेटी रंग की वर्दी में मलबूस एक चौकीदार गेट की जेली खिड़की खोलकर बरामद हुआ। उसने दूर ही से उसे मुतनब्बे किया, लड़की गेट के नजदीक आना मना है। वो एतमाद भरे लहजे में बोली, हाँ मगर अंदर जाना तो मना नहीं है ना। इस मर्तबा चौकीदार ने उसे गुस्से भरे लहजे में डांटा, भाग जा। वो बोली, मैं कबीर दादा की दोस्त हूँ, यकीनन मुझे भगाना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं रहेगा। उसका पुरएतमाद अंदाज बरकरार रहा। वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। उसके मुंह से कबीर दादा का नाम सुनकर चौकीदार चौंक गया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर शुकूक भरी परछाइयां लहराने लगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई, तुम होश में तो हो ना? तनावुश मुस्कुराई, नशा तो मैं नहीं करती। चौकीदार आखिरी दम तक उसे नसीहत करने से बाज ना आया। बोला, लड़की ये एडवेंचर तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। तनावुश बोली, ना मैं नशे में हूँ, ना मजाक कर रही हूँ और ना मुझे किसी एडवेंचर का शौक है। आप कबीर दादा को इत्तला दो कि उसकी दोस्त तनावुश रफीक उससे मिलने आई है। उसके बाद एतमाद अंदाज पर चौकीदार उसे घूरता रह गया। उसे खामोश देखकर वो दोबारा बोली, देखो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जो कुछ होगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, और अगर मैं सच्ची हूँ तो यकीनन मेरे वापस जाने की खबर कबीर दादा को बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी दोस्त को गेट से वापस भेज देने वाले चौकीदार के साथ वो क्या सलूक करेगा, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए शायद मुश्किल ना हो। इस मर्तबा उसकी धमकी काम कर गई। चौकीदार वापस गेट के अंदर गया और इंटरकॉम उठाकर किसी से पूछने लगा। 2 मिनट के बाद उसने तनावुश को अंदर आने का कहा। अंदर आ जाएं। वो जेली खिड़की से अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने उसके बैग की तलाशी ली। मेटल डिटेक्टर उसके जिस्म के गिर्द घुमाकर उसके पास किसी हथियार वगैरह की गैर मौजूदगी को यकीनी बनाया और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो महल नुमा कोठी थी। गेट से अंदरूनी इमारत तक सीमेंट का पुख्ता रास्ता बना था जो अंदरूनी इमारत के करीब जाकर बाएं जानिब मुड़कर गिराज तक पहुंचता था। पुख्ता रास्ते के दोनों जानिब खुशनुमा फूलों की क्यारियां लगी थीं। क्यारियों से मुत्तसिल ऑस्ट्रेलियन घास के खुशनुमा कते थे। कोठी की बैरूनी दीवार के साथ सर्व, एरोकेरिया और बोतल पाम के दरख्त लगे थे। घास के वसी कते के बीचों बीच शेर बब्बर का एक मुजस्समा नस्ब था और उसके चारों जानिब दायरे में फवारे नस्ब थे जिनका पानी शेर के ऊपर एक जाल सा बना रहा था। एक सरसरी नजर से कोठी का जायजा लेकर वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ गई। अंदरूनी इमारत के करीब पहुंचते ही 3 पीस में मलबूस एक जवान साल आदमी बाहर निकला और उससे कोई सवाल पूछे बगैर उसे अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में दबीज कालीन बिछा था। दीवारों पर जंगल के बादशाह के शिकार की मुख्तलिफ तस्वीर लगी थी। किसी जगह पर शेर ने हिरन को मुंह में दबाया हुआ था, कहीं बैल के ऊपर सवार था, कहीं बारहसिंगे को जकड़ा हुआ था और कहीं हाथी और जराफे जैसे अजीमुल जुस्सा जानवर पर झपट रहा था। साफ नजर आ रहा था कि शेर बब्बर घर के मालिक का पसंदीदा जानवर था। वो आदमी बोला, जी मिस, आपने किस सिलसिले में कबीर दादा को मिलना है? उसे बैठने का इशारा करते हुए उसने बज़ाहिर मुअद्दब अंदाज में पूछा, मगर तनावुश को उसके लहजे में इस्तेहजा का अंसर नुमाया नजर आ रहा था। वो थूक निगलते हुए बोली, मैं कबीर दादा की दोस्त हूँ।
उस आदमी ने अंदाजा जाहिर किया, बोला बेहतर होगा कि आप असल बात से पर्दा उठा दो, शायद तुम्हें जस्टिस जहीर अमजद ने भेजा है। वो हकला गई, बोली नहीं मैं खुद आई हूँ। वो उसे समझाते हुए बोला, देखो ये कबीर दादा के आराम का वक्त है और इस वक्त वो किसी से मिलना गवारा नहीं करता। झूठ बोलकर आप अपने लिए तो सख्ती बनाएंगी ही, मुझे भी झाड़ पिलवा देंगी। तनावुश बोली, देखें आप कबीर दादा को बता दें कि उसकी दोस्त तनावुश रफीक आई है, नहीं तो मैं वापस चली जाती हूँ, फिर खुद ही उन्हें जवाब देते रहना। इस मर्तबा वो अपने लहजे में एतमाद पैदा करने में कामयाब रही थी। यूं भी कबीर दादा के इतने करीब आकर उसे मिले बगैर लौट जाना बुज़दिली होती। दिलावर शेख को अंजाम तक पहुंचाने का ये आखिरी मौका था। गो उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि कबीर दादा जैसा सूटेड बूटेड गुंडा किसी लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, लेकिन दिलावर शेख की नफरत और दुश्मनी ने उसके दिलो दिमाग से हर खौफ और डर निकाल दिया था। वो आदमी बोला, देखो लड़की, तुम बहुत बड़ा दावा कर रही हो। जहां तक मेरे इल्म में है, कबीर दादा लड़कियों से एक रात से ज्यादा ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता। उसे तनावुश की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तनावुश का चेहरा भी हया से लाल हो गया था, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने आखिरी चाल चली, बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, आप जाने और आपका दादा। ये बोलकर उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे रुकने का कहकर वो बादल नखास्ता लकड़ी के मुनक्कश दरवाजे की तरफ बढ़ा और झिझकते हुए दरवाजे के ऊपर लगा एक बटन दबा दिया। तनावुश को उसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमकते हुए नजर आ रहे थे। यकीनन ये कबीर दादा का आरोप ही था कि उसके खास बंदे की भी डर के मारे ये हालत हो रही थी। लम्हा भर के बाद ही दरवाजा एक झटके से खुला। वो कमीज उतार चुका था और बेबाजू की सफेद बनियान, पतलून और हवाई चप्पलों में वो दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी के असरात थे। खिदमतगार ने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, बॉस आपकी दोस्त मिलने पर इसरार कर रही थी। वो बोला, मेरी दोस्त? उसके लहजे में शामिल हैरानी तनावुश के लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। उसके साथ ही उसने सोफे पर बैठी तनावुश की तरफ देखा, जो उसे देखते ही खड़ी हो गई। कबीर का आदमी बोला, जी ये लड़की कह रही थी कि। उसने हकलाते हुए बात पूरी करना चाही, मगर उससे पहले ही कबीर दादा का हाथ घूमा और वो कूल्हों के बल नीचे जा गिरा। मजीद कुछ कहे बगैर वो दरवाजा बंद करने ही लगा था कि उसने जबान की बजाय समझाने का जो तरीका इस्तेमाल किया था वो जबान से कई गुना मौसर और समझ में आने वाला था। मगर तनावुश इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करते हुए बाआवाज़ बुलंद बोली, कबीर दादा मुझसे बात किए बगैर आप नहीं जा सकते। उसकी बात पर कबीर दादा को झटका सा लगा। दरवाजा बंद करने का इरादा तब्दील करते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस मर्तबा उसकी आंखों में दिलचस्पी के आसार नुमाया थे। कमरे से बाहर आकर वो उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें शायद उस टटपूंजिए जस्टिस ने भेजा है। वो नर्म नाजुक छुई मुई लड़की उसके सामने यूं नजर आ रही थी जैसे शेर के सामने खरगोश दिखता है। वो बोली, मैं जाती काम से आई हूँ। हिम्मत मुजतमा करते हुए उसने कबीर दादा की आंखों में झांका। उसके लिए उसे अपना सर काफी ऊपर उठाना पड़ा था। शहर भर में तुम्हें मैं ही सोशल वर्कर नजर आया हूँ, तंजिया लहजे में कहकर कबीर दादा पीछे मुड़ा। वो बोली, बात सुन लेने में क्या हर्ज है, शायद आपको भी कोई फायदा नजर आ जाए। गहरा सांस लेते हुए वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जिसमें से 5 सेकंड गुजर चुके हैं। उसने कलाई पर बंधे सुनहरे डायल की कीमती घड़ी आंखों के सामने पकड़ ली। तनावुश बोली, मुझे एक आदमी को कत्ल करना है और उसके लिए आपकी मदद चाहिए। बदले में आपको जो भी दरकार होगा मैं दूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।